Hello, my dear students. So today I am going to start question number 15 in exercise 5.3 students. Question number 15. A contract on the construction job specifies penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, 250 for second day, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Students, दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करता है उसमें पेनल्टी डिसाइड कर दी गई है कि अगर वो एक दिन लेट करता है तो फर्स्ट डे का 200, नेक्स्ट एक दिन और लेट करता है तो 250 और लेट करता है तो 300। इट मीन्स पर डे 50 रुपीज पेनल्टी बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है 30 डेज वर्क को लेट करे तो कितनी पेनल्टी देनी होगी स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है। So students, according to question, since the penalty for each succeeding day, since the penalty for each succeeding day rupees is rupees 50 more than the preceding day, 50 more than the preceding day, therefore penalty for the first day, therefore students, therefore penalty for the first day and second day, third day, will form an AP, etc. will form an AP students. AP 200, 250, 300, 350 and so on students. So A is equal to student first term, A is equal to 200, D is equal to student 50 and according to question N is equal to 30 students. N is equal to 30. Then students, contractor has to, how much money the contractor has to pay. So students, therefore money the contractor as penalty if has delays 30 days. So students, Sn equal to n by 2 so students, Sn equal to n by 2, 30 by 2, 2A, 2 into 200 plus 30 minus 1, 29 into D students. So student, calculate and we will find Sn equal to 27,750 rupees students. So contractor has to pay as penalty
rupees 27,750 students. So students, we will moving next question, question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of prizes. Students, given है कि टोटल 700 रुपीज प्राइज स्कूल स्टूडेंट्स को दिया जाता है पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और हर एक प्राइज स्टूडेंट, फर्स्ट प्राइज जितने का है उससे 20 रुपीज लेस हो जाता है, सेकंड प्राइज उससे 20 रुपीज लेस हो जाता है थर्ड प्राइज, और थर्ड प्राइज से 20 रुपीज लेस हो जाता है फोर्थ प्राइज। तो इस तरह से 7 लोगों को प्राइज दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेज। सो स्टूडेंट्स, according to question given that each prize is rupees 20 less than its preceding prize. Students, since each prize is rupees 20 less than its preceding price, rupees 20 less than its preceding price, students. Therefore, the value of the 7 successive cash prizes, therefore the value of the 7 successive cash prizes, 7 successive cash prizes will form an AP. Will form an AP, students. So let the first prize be rupees A. Let the first prize be X. Students, let the first prize be X, then the other prizes, then the other prizes, in succession will be X minus 20, X minus 40, X minus 60, and so on, students. So students, first term is X. Students, first term is X. Let the first prize be X, then other prizes in succession will be this. Therefore, AP, students, X minus 20, X minus 40, X minus 60, and so on, students. Then what will do, students? Find the value of each prizes and sum of rupees 700 is to be used. जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट सम ऑफ द दे दिया जाए, सम इट मीन्स एसएन का यूज करना है स्टूडेंट्स,
देन हम इसमें फाइंड कर लेंगे एसएन के फार्मूले से। स्टूडेंट्स गिवन क्या है, ए फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू एक्स, डी स्टूडेंट्स a2 माइनस a1, x माइनस 20 माइनस x इक्वल टू माइनस 20 and n is equal to 7 student according to question given that this quantity, this variable is given according to question students. So students Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, putting all these values students. So students Sn 700, Sn is also given students 700 is equal to n by 2, 700 is equal to n by 2, 2a students 2x plus 7 minus 1 6 into minus 20 students. So students 700 is equal to 7 by 2, 2x minus 120 students. So to multiply this side students, 1400 is equal to 7 into 2x minus 120 students. So 1400 divided by 7 is equal to 2x plus 20 students. 2x minus 120 students. 2x minus 120. So students 7 1 and 200. Therefore 200 is equal to 2x minus 120. So students 2x equal to 320. Therefore x is equal to 160 students. So value of the first prize. Value of the first prize is equal to 160 rupees students. Value of the second prize students 160 minus 20 140. Value of the third prize students 140 minus 20. क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है हर एक प्राइज 20 लेस होते जाएगा. सो वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्राइज स्टूडेंट्स 120 minus 20 100. So value of the fifth prize students 100 minus 20 80. Value of the sixth prize students 80 minus 20 60. And value of the seventh prize students 60 minus 20 40 rupees students. So value of the first prize 140, second one 120, third one 100, fourth one 80, fifth one 60, and seventh one student 40. So I hope student you all are getting it very well. Okay students, we will move question number 17th one student. 17th one, in a school of student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying.
For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So, बच्चों अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है कि एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट करते हैं कि हमें प्लांटिंग करनी है ट्री की स्कूल के अंदर और उसके चारों ओर एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स, और उन लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो जैसे क्लास 1 है तो एक ही ट्री प्लांट करेगा, हर एक सेक्शन क्लास 1 के हर एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 के हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 3 के हर एक सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेंगे। ऐसे 1 to 12 तक के स्टूडेंट्स जो हैं ट्री प्लांट करेंगे, और हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं स्टूडेंट, 3 सेक्शन हैं, तो कुल कितने ट्री प्लांटेड होंगे स्टूडेंट्स से ये बताना है। इट मीन्स एसएन का यूज करना है स्टूडेंट्स, तो एसएन का यूज करना है। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। सो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, solution. First of all, try to find how many tree plant by standard 1, then standard 2, then standard 3, then standard 12 students. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले ने कितना ट्री प्लांट किया, सेकंड वाले ने कितना प्लांट किया, थर्ड वाले ने कितना प्लांट किया, एंड सो ऑन 12 तक. सो स्टूडेंट्स, number of trees planted by student of class 1, planted by students of class 1 स्टूडेंट. तो पहले हम फाइंड करेंगे क्लास 1 के स्टूडेंट ने कितना प्लांट किया ट्री. तो 3 सेक्शन है स्टूडेंट्स, तो क्लास 1 वाले 1 + 1 + 1 ईच सेक्शन 1 ट्री प्लांट किया. तो क्लास 1 वाले ने कितना ट्री प्लांट किया स्टूडेंट्स, 3. सिमिलरली स्टूडेंट हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे, थर्ड के लिए फाइंड करेंगे, फोर्थ के लिए फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टूडेंट थॉट करते हैं प्लांटिंग करने का स्कूल में ट्री, और जो जिस क्लास में है उतने ही ट्री प्लांट करेगी वो क्लास, हर एक सेक्शन, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो कुल कितने ट्री प्लांट होंगे स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 इज 3. ऐसे स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे. क्लास 2 वाले कितना करेंगे, क्लास 3 वाले कितना करेंगे. तो स्टूडेंट्स देन हम फाइंड करेंगे number of trees planted by students of class second students. तो 2 + 2 + 2 टोटल 6 स्टूडेंट. देन स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. क्लास थर्ड में क्या हो जाएगा, क्लास थर्ड 3 + 3 + 3 = 9. सिमिलरली फाइंड करेंगे नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ में क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12. ऐसे 5th 6th 7th सबका फाइंड करेंगे. So students, number of trees
लास्ट में जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। सो फर्स्ट सेक्शन 12, सेकंड वाला सेक्शन भी 12 और तीसरा सेक्शन भी 12, टोटल 36 हो गए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, number of tree form the sequence, therefore number of tree form the numbers of trees form a sequence स्टूडेंट्स। वो कौन सा सीक्वेंस है? फर्स्ट वालों ने कितना किया था स्टूडेंट? 3, सेकंड वालों ने कितना किया था? 6, थर्ड वालों ने कितना किया? 9, फोर्थ वालों ने कितना किया? 12 एंड सो ऑन। लास्ट में 12th वालों ने कितना किया? 36। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दिस सीक्वेंस इज एन एपी स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove this sequence is an AP. So students, 3, 6, 9, 12 and 36. Therefore, A2 minus A1 equal to 6 minus 3. A3 minus A2, 9 minus 6 equal to 3. So, A2 minus A1 equal to A3 minus A2. Hence, sequence is an AP students. So first term A is equal to 3, D is equal to 3 and N is equal to students 12। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर के फर्स्ट से लेकर 12th तक टोटल 12 होते हैं और लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है स्टूडेंट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12 Sn equal to n by 2 a plus l स्टूडेंट्स। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे स्टूडेंट्स। Sn equal to n by 2, 12 by 2 a 3 and l लास्ट टर्म 36। 2 1 जा 2 6 जा स्टूडेंट्स, 6 into 39। So Sn equal to टोटल स्टूडेंट्स ने 234 ट्रीज प्लांट किया। सो टोटल स्टूडेंट्स ने 234 ट्रीज प्लांट किया स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी वेल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th one, a spiral made up of successive semicircles. Spiral made up successive semicircle students with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on, as shown in figure students. And shown in figure, what is the total length of such spiral made up 13 consecutive semicircles where pi is equal to 22 by 7 students? Value of pi 22 by 7. So students, according to question given that spiral made of successive semicircle with center, फर्स्ट देखो सेमी सर्कल विथ सेंटर ए स्टूडेंट, देन नेक्स्ट सेमी सर्कल विथ सेंटर बी स्टूडेंट, देन नेक्स्ट सेमी सर्कल अगेन सेंटर ए, नेक्स्ट सेमी सर्कल स्टूडेंट्स अगेन सेंटर बी, देन अगेन सेंटर ए। इस टाइप से स्पाइरल बना हुआ है
कि पहले सेमी सर्कल का सेंटर ए है तो दूसरे सेमी सर्कल का सेंटर स्टूडेंट बी हो जाता है, तीसरे L3 वाले सेमी सर्कल का सेंटर स्टूडेंट फिर से ए हो जाता है, L4 वाले का फिर से बी हो जाता है, L5 वाले का फिर से जो है स्टूडेंट्स ए हो जाता है। तो इस तरह से स्पाइरल बना हुआ है। टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्पाइरल की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। टोटल 13 सेमी सर्कल हैं तो स्पाइरल की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ in centimeter of successive semicircles of successive semicircles with center A, B and so on स्टूडेंट्स। तो लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमें पता है लेंथ का फार्मूला, सेमी सर्कल के लेंथ का फार्मूला, लेंथ L इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्टूडेंट्स। सेमी सर्कल का अगर सर्कल होता तो 2 पाई आर होता स्टूडेंट, बट सेमी सर्कल है तो पाई आर। सो लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पाई इंटू आर। According to question, R is given 0.5 in first spiral, and second one pi into R, and third one students pi into R. R 1.5 is given, and pi into 2.0 and so on students. So students, this is the sequence. So A2 minus A1 equal to student 1 pi minus 0.5 pi equal to 0.5 pi. Then A3 minus A2 students, A3 1.5 pi minus 1 pi, it means 0.5 pi students. So the above list of numbers, above list of numbers form an AP students, form an AP. Therefore students, A is equal to A first term 0.5 pi, D students, D 0.5 pi, A2 minus A1, this equal to D students. So and n students, total 13 semicircles are given. So use the formula student, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So students, putting all these values, Sn is equal to, putting all these values students, Sn is equal to n by 2, 13 by 2, 2a, 2 into 0.5 pi plus n minus 1, 13 minus 1 student, 12 into d 0.5 pi, 2a plus n minus 1 into d students. So Sn equal to 13 by 2 pi plus 6 pi students. 2 5 ja 10, 1.0 and 12 5 ja 66.0. So 1 pi plus 6 pi is equal to 13 by 2 into 7 pi students. So 13 by 2 into 7 into 22 by 7, putting the value of pi students, putting the value of pi is equal to 22 by 7. So 7 will be cancels, 2 and 11.
So students, Sn is equal to 13 into 11, 143 centimeter students. This is the required answer students, 143 centimeter. Students, we move on next question, question number 19. 19 students, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row and 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? Students, ऐसे जो है लॉक्स अकॉर्डिंग टू फिगर सेट किए गए हैं लास्ट बॉटम वाले रो में. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, बॉटम वाले रो में 3 लॉक्स हैं, देन उसके ऊपर 2 हैं, देन उसके ऊपर 1 है. इस तरह से ऐसे सेट किया गया है स्टूडेंट्स कि बॉटम में ज्यादा हैं, फिर उसके टॉप में एक कम हुआ, उससे टॉप में एक कम, उससे टॉप में एक कम. इस तरह से स्टैक्स सेट किए गए हैं स्टूडेंट. पहले 3 स्टैक्स हैं, देन उसके बाद 2 स्टैक्स, देन उसके बाद 1 स्टैक्स. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इन बॉटम रो 20 स्टैक्स, 20 लॉक्स हैं, देन उसके ऊपर एक कम करके 19 है, देन उसके ऊपर 18 है. स्टूडेंट यहां पर देखो, ये फर्स्ट में 20 है, सो नेक्स्ट में 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है. इस मैनर से ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. टोटल 200 लॉक्स हैं. तो स्टूडेंट बताना है कि इस मैनर में अगर रखे हुए हैं कितने रो में 200 लॉक्स आ जाएंगे और एकदम टॉप पर जो रो आएगी उसमें कितने लॉक्स होंगे स्टूडेंट. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स. लॉक्स जो हैं लकड़ी के टुकड़े ऐसे अरेंज किए गए हैं. सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, उसके ऊपर 17 है. 1 कम होते गया, रिड्यूस करते गए हैं और लास्ट में कितने टुकड़े होंगे वो बताना है. टोटल अपने पास 200 लॉक्स हैं, तो लास्ट में कितना होगा और कितनी रो बनेगी इसको सेट करने में स्टूडेंट्स. तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ लॉग्स, the number of logs form the number of logs form the sequence. वो सीक्वेंस कौन सा होगा स्टूडेंट? एकदम बॉटम में 20, देन 1 रिड्यूस होकर के 19, देन 1 रिड्यूस होकर के स्टूडेंट्स 18, देन 1 रिड्यूस होकर के 17, 1 रिड्यूस होकर के 16. दिस इज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकदम बॉटम में 20, उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम. तो हम चेक कर लेंगे ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं स्टूडेंट्स. सो A2 माइनस A1, 90 माइनस 20 माइनस 1, A3 माइनस A2, 18 माइनस 90 माइनस 1. स्टूडेंट देयरफॉर A2 minus A1 equal to A3 minus A2, hence sequence is AP. So sequence form an AP students. Sequence AP बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है स्टूडेंट्स. Therefore first term A is equal to 20 and D is equal to minus 1, 1 reduce हो रहा है स्टूडेंट्स. एंड टोटल SN स्टूडेंट्स 200. तो हमें फाइंड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल N फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स. तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं.
एस एन वाले फार्मूले में स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप कर देंगे स्टूडेंट्स। एस एन गिवन है स्टूडेंट 200, n बाई टू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 20 स्टूडेंट्स प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1। 2 से इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1 स्टूडेंट्स। सो 400 इज इक्वल टू 40 प्लस 1 41n माइनस n स्क्वायर स्टूडेंट्स। So this will be equal to students n square minus 41n plus 400 is equal to 0. So students इसको फैक्टराइज करेंगे। So n square minus 41n plus 400 it's okay. Then इसको फैक्टराइज करेंगे, 400 के 2 पार्ट्स करेंगे जिसमें कि सम करें तो 41 आए, 25 एंड 16 स्टूडेंट्स। So n square minus 25n minus 16n plus 400 is equal to 0। फैक्टराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स। n minus 25 and n minus 16 equal to 0। Therefore n is equal to 25 or n is equal to 16 स्टूडेंट्स। तो रो 25 हो सकती है, अदरवाइज ऐसे 1 2 3 4 5 25, अदरवाइज 16 हो सकती है, बट चेक करेंगे स्टूडेंट्स। हेंस नंबर ऑफ रो, हेंस द नंबर ऑफ रो आइदर 25 और 16 स्टूडेंट्स। तो चेक कर लेंगे इसको कि रो कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, अगर रो 25 होती है स्टूडेंट्स, ये n इक्वल टू 25 आता है, n इक्वल टू 25। नाउ इफ n इक्वल टू 25, नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल टू 25th row। number of logs in 25th row, it means a25 students। so n equal to a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुटअप कर दो स्टूडेंट्स। a25 is equal to a20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1 स्टूडेंट्स। सो a25 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट। माइनस में पॉसिबल ही नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। देन स्टूडेंट्स अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 students। therefore n equal to 16, n equal to 16 लेंगे स्टूडेंट्स। so a16 equal to a plus 1 n minus 1
D. So students, A16 is equal to A20 plus 15 into minus 1. A16 equal to 20 minus 15. A16 equal to 5 students. तो टोटल रो आएगी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर n is equal to 16 and number of log in the last row and number of the log or in the top row is 5. Number of logs in top row is 5. स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आंसर कि टोटल कितने रो होंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रो होंगे 16. टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे 16 एंड लास्ट में कितना आएगा स्टूडेंट, लास्ट लॉग जो आएगा एकदम टॉप पर वो 5 होगा. 25 क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 25 लेते हैं तो लास्ट में -4 आता है, तो -4 लॉग में कोई मीनिंग नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स. सो दे विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting. Students, bucket is placed at the starting according to figure. Students, which is 5 meter from the first potato. फर्स्ट पोटैटो से ये स्टूडेंट पोटैटोज हैं. फर्स्ट पोटैटो से कितना है 5 मीटर बकेट है. एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन. और सब पोटैटो के बीच में स्टूडेंट्स कितना है 3 मीटर से है. सभी पोटैटोज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 3 मीटर. सो there are 10 potatoes are in the line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 potatoes students. Each competitor start from the bucket. bucket से दौड़ना शुरू करता है students. Picks up the nearest potato and next potato run to the bucket to drop it in and she continue in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run students? तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो अच्छे से. एक बकेट रखी है और ऐसे पोटैटोज 10 पोटैटोज रखे हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पर, और फर्स्ट पोटैटो से बकेट की डिस्टेंस है स्टूडेंट 5 मीटर. सो कंपटीटर बकेट से रेस करना शुरू करता है और यहां आता है फर्स्ट पोटैटो के पास स्टूडेंट्स. फर्स्ट पोटैटो के पास आता है, यहां से पोटैटो उठा करके फिर से ले जाता है बकेट में. इट मीन्स बकेट टू पोटैटो डिस्टेंस हुआ 5 एंड देन फर्स्ट पोटैटो टू बकेट 5. तो 5 और 5 क्या हो गया स्टूडेंट 10 हो गया. सो उसने फर्स्ट पोटैटो ड्रॉप करने के लिए कितना मीटर रनिंग किया 10 मीटर स्टूडेंट. सो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स, सोल्यूशन to drop the first potato, to drop the first potato, to drop the first potato in the bucket, in the bucket. The distance run is equal to students 2 into 5 students. फर्स्ट पोटैटो को ले जाने के लिए उसको कितने मीटर चलना हुआ, यहां से रन करके आया फर्स्ट के पास 5 मीटर, देन इसमें ले जाकर के डाल दिया 5 5 10. देन स्टूडेंट जब सेकंड पोटैटो के पास आता है तो रनिंग इसकी कितनी हो गई 5 + 3 8. 8 इधर आया और 8 इस साइड में भी गया स्टूडेंट. टोटल कितना हो गया 16 स्टूडेंट. तो ऐसे इसे समझना है. टू ड्रॉप द सेकंड पोटैटो, नेक्स्ट
to drop the second potato in the bucket distance traveled स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5 + 3 देन 5 + 3 तो क्या हो जाएगा 2 × 5 + 3 स्टूडेंट्स क्या हुआ 5 + 3 जाने का फिर 5 + 3 आने का तो टोटल कितना हो गया 2 × 8 स्टूडेंट्स 16 मीटर कितना हुआ 16 मीटर स्टूडेंट नेक्स्ट टू ड्रॉप द थर्ड पोटैटो स्टूडेंट थर्ड पोटैटो इन द बकेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड पोटैटो के लिए फर्स्ट के लिए ये था सेकंड के लिए 3+ हुआ फिर से 3+ हो जाएगा स्टूडेंट तो 5 3 8 3 11 ये हो गया स्टूडेंट 5 + 3 + 3 स्टूडेंट सेकंड के थर्ड के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 + 3 + 3 ये 5 पर 1 पे आया फिर 3+ किया 2 पे आया फिर 3+ कर लिया सेकंड पर आ गया और ये आने और जाने का 2 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट तो 5 3 8 3 11 2 जा 22 स्टूडेंट्स ऐसे ही हम फाइंड करते जाएंगे नेक्स्ट के लिए स्टूडेंट्स थर्ड पोटैटो के लिए फोर्थ पोटैटो के लिए अब फोर्थ के लिए करेंगे स्टूडेंट्स टू ड्रॉप फोर्थ पोटैटो क्या हो जाएगा फोर्थ के लिए स्टूडेंट 2 × 5 + 3 + 3 + 3 हो जाएगा स्टूडेंट ये देखो ये बकेट से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस सेकंड के लिए थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए तो ये क्या हो गया 28 स्टूडेंट 2 × 14 28 एंड सो ऑन स्टूडेंट सो ऑन तो क्या हो गया सीक्वेंस स्टूडेंट्स सो above distance so above distance form a sequence स्टूडेंट कौन सा सीक्वेंस फॉर्म कर रही हैं फर्स्ट क्या आया था 10 मीटर देन क्या आया था स्टूडेंट 16 देन क्या आया था 22 देन क्या आया था स्टूडेंट 28 एंड सो ऑन ये सीक्वेंस बन रहा है स्टूडेंट्स ये देखो फर्स्ट पोटैटो के लिए यहां से 5 मीटर गया फिर 5 मीटर आया 10 से सेकंड पोटैटो के लिए स्टूडेंट 5 3 8 जाना और फिर लेकर के आना 16 इसके लिए स्टूडेंट्स फिर से जाना और लेकर के आना तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन रहा है स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे देन स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस हो गया 10 16 22 28 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स तो a2 - a1 16 - 10 = 6 a3 - a2 22 - 16 = 6 student therefore a2 - a1 = a3 - a2 so sequence in AP student therefore a is equal to 10 d is equal to 6 and n क्या होगा स्टूडेंट कितने पोटैटो थे 10 so total distance the completer has to run therefore total distance the completer
हैज टू रन स्टूडेंट्स एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d students. Putting all these values in this equation students. So S10 is equal to n by 2 2a 2 into 10 plus n minus 1 9 and d 6. So S10 equal to 5 20 plus 54 74. So S10 is equal to 370 मीटर स्टूडेंट्स. सो कंप्यूटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टूडेंट्स? 370 मीटर. स्टूडेंट्स कंप्यूटर 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. स्टूडेंट्स ये सीबीएसई बोर्ड ने 2021 एकेडमिक ईयर के लिए 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए क्वेश्चन नंबर 15 to 20 को सिलेबस से निकाल दिया है, बट हमने इसका सलूशन बना दिया है और ये भी आप लोग देख लेंगे. अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. थैंक यू.